cinema, as we all know, ki it has played a very pivotal role in breaking the negative stereotypes in the society, creating the awareness in the society, bringing equality in the society. So government is very much cognizant of this. So as I mentioned just a few minutes back, ki media and entertainment sector is the most booming sector after the IT sector in India. It is growing at an annual growth of more than 25%. So government has taken a cognizance of it. They have set up a task force for providing the skilled opportunity to the youth in terms of in AVGC sector, which the country is doing very well, and it is the future of this industry. So the government is about to set up an institute like FTI to train under the PPP mode to train in this AVGC sector also. Also the 75 creative minds, it has been taken at a big platforms in this coming 53rd International Film Festival of Goa. The youth, the primary aim is to nurture them, to make them an icons of the cinema. So the government is taken it very seriously. We have identified 10 creative fields in which the applications will be invited, and all these youths, they will be given a kind of mentorship with the international filmmaker and with the domestic filmmaker in Goa, and then they will be given an opportunity to make a short film also, and they will be associated with the qualified technicians also, so that they learn the nuances of the filmmaking, they get attracted to this field. In addition to that, a lot of budding filmmakers are being provided the necessary funds to make the films by National Film Development Corporation under the DCDFC scheme. So on an annual basis, we are making 4 to 5 films. These young filmmakers, they are being given fund by the government. We are conducting a scriptwriters lab in which we are inviting the scripts from the budding scriptwriters, and based on that, a number of films are being made. We are taking the youth to the various international film festivals where we are pitching their works, so that we are kind of providing a platform to interact with the international filmmakers and the international sales agents, buyers. So government is pretty serious about giving boost and impetus to this media and entertainment sector. And I hope India, is being promoted as a content hub in the world. It is being the preferred filming destinations. Recently, our Honorable Minister announced the incentives for the international filmmakers, and which has been become hugely popular. We are getting a lot of queries about them. Up to 30% of their qualifying expenditure, they can reimburse, and maximum up to 2 CR, and even it can go to up to 2.5 CR. So all these incentives were long awaited by the international filmmakers, and they have been announced. So what I mean to say, this is one of the priority sector on the government's field, and they are doing everything possible to to attract the youth to this particular sector. Great. Thank you so much, Mr. Bhakarji. Let's give him a huge round of applause, because many of the things he said, makes us aware what our government of India is also doing for our upcoming filmmakers and, of course, the talent in our country. Divyaji, firstly, a very huge welcome. Absolutely looking beautiful. Let's give her a huge round of applause. Now, I must say, when you smile, it makes us smile with her. That's the kind of personality she carries. दिव्या जी, मैं आपसे बस एक बहुत ही महत्व सवाल पूछना चाहती हूँ. When it comes the time to choosing, a script, what is it that you look at? What aspect do you look at? And when it comes to the topic of patriotism, आप क्या देखते हो वो फिल्म में या स्क्रिप्ट में, which that lets you or pushes you to sign it up as an actor? We'd just like to hear from you on that. very good morning everyone. मेरी इवनिंग हो गई. आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. आई मस्ट से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और सबको सुन रही थी, मैं इतना घुस गई उसमें that I just went in there. But I must say it's an honor to be with each and everyone here. Subhash ji, we've like literally seen all the films that you've made, और आपको सुनना, आपकी बातें, आपके एनेक्डोट्स, गाने कैसे बने, फिल्में कैसी बनी, लिखी, आई थिंक ये हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हम साथ लेके जाएंगे. जगुदा, you are a part of my book, you know that, and I reiterate it again. It's समथिंग अबाउट हिम. आपने मुझे कहा मेरी मुस्कुराहट के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जगुदा जब दिल से बोलते हैं
मैंने ऑडियंस में देखा हर कोई मुस्कुरा रहा था. So there's something so beautiful about him, which exudes so much positivity. And this wonderful man here, I think he's been so special to me because right from his films, अक्स हो या रंग दे बसंती हो और फिर बाकी फिल्मों का अहम हिस्सा मैं रही हूँ. इट्स बीन ग्रेट टू. अभी मैं कुछ और सोच रही थी कि ये जब आप उनसे सवाल कर रही थी मुझे लगा वो मानेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया और इतना खूबसूरत जवाब दिया. सो इट्स अमेजिंग टू लिसन टू एवरी वन हियर. एंड सर, thank you so much for throwing insights on whatever is happening. And I'm yet to listen to Shabir and to you. सबसे पहले सुभाष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम दिल से जब बात करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है. और हर एक का एक अपना प्रोसेस होता है. एक्टर्स का प्रोसेस ये होता है, एंड आई एम श्योर जगुदा अग्रीज, कि मेरे लिए ज़रूर होगा कि जो चीज़ दिल को भा जाए उसको फट से कर लेना चाहिए. और वो बड़ी फिल्म भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो वैसी फिल्म हो सकती है चाहे शायद आपने कभी की ना हो. तो अपने आप को चैलेंजेस देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और इंटरेस्टिंग करना, थोड़ी सी वो नर्वस एनर्जी रखना अपने पास, जब शीशे में देखना, आईना देखना तो एक अलग इंसान देखना. आई थिंक ये सब चीज़ें जब आपको एक रोल में मिलती हैं तो उसके लिए हाँ कर देना चाहिए. रही बात पेट्रियोटिज़म की, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनमें पेट्रियोटिज़म था, जिनमें आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया. बहुत सारी पार्टीशन की फिल्में की. इनफैक्ट मेरी दूसरी फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान वाज दैट. सो व्हाट आई फील व्हाइल डूइंग दैम, आई थिंक व्हेन यू टेक से अ बायोपिक लाइक मिल्खा जी की जब हम बात कर रहे हैं, बतौर एक्टर्स हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उन जिंदगियों को उन लम्हों में जी पा रहे हैं. हमें वो कैसा फील करते थे, वो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो जितने दिन हम शूट करते हैं हम उसे फील कर पाते हैं. आई मस्ट शेयर दिस इंसिडेंट विद यू सर. एंड हम लोग भाग मिल्खा भाग की शूटिंग कर रहे थे और वो फेमस सीन जो हमारा है ब्लेज़र वाला सीन, आई एम श्योर आप सबको याद होगा. तो राकेश जी ने हमें सीन दिया और कहा कि इसका जो ये सीन तो है, अब इसका एंड तुम लोग जो मन से आएगा वो सोचना. अब इनकी जो बातें होती हैं ना वो इतनी खूबसूरत और सटली बोल जाते हैं कि आप ग्रास्प कर लें तो वो जादू हो जाता है एकदम. तो मैं सोच रही हूँ खुद कैसे कर लेंगे, मतलब व्हाट विल आई डू व्हेन आई डू इट. तो जब हमने सीन करना शुरू किया और मुझे वो ब्लेज़र पहनाया गया और वो जो सेंस ऑफ प्राइड फील हुई बतौर एक ऐसी बहन के जिसने अपना जो उसके पास जितने बिलोंगिंग्स थे अपने भाई का करियर बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, फ्यूचर बनाने में लगाए. तो जब वो हाथ डालती हैं वो ब्लेज़र के अंदर और फिर वो मुड़ के उन्हें हग करती हैं, तो जैसे मैंने उन्हें गले लगाया मैंने सोचा अब ये सीन क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा. तो फिर इनकी बात मुझे याद आई कि फिर मन से जो आए वो कर लेना. और मुझे ये याद आया कि एक एक्टर की भी जो रोल कर रहे हो आप, उसकी भी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है. तो जब इसरी कौर जब हम कर रहे थे तो हम एक सीन कर चुके थे उससे पहले जो यंगर पोर्शन था, जिसमें हमारे जो फादर का रोल कर रहे थे उन्होंने छोटे मिल्खा जी को सल्यूट किया था. तो मैंने फट से उन्हें हटाया और सल्यूट किया. आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ प्राइड दैट आई फेल्ट एज अ सिस्टर बीइंग इन दैट मोमेंट, एज एन एक्टर and as an Indian. Everything just came together. I think that scene was so magical. We all were crying. None of us, neither me nor Farhan, used glycerine. Rakesh ji was crying. Vinod ji was crying. Everyone was crying. So I think that is the beauty of a role that you play, जिसे आप दिल से करते हैं और जो दिलों तक पहुंचता है. So I would just say दिल से दिल की ही राह होती है, and that is I think what everyone in different ways is trying to say here. I'd like to add a little bit. So वो दिव्या घर में बर्तन मांज रही हैं राख से. राख होती थी जो अंगीठी से निकलती थी और उसमें फरहान आते हैं सूटेड बूटेड पूरा वो चश्मा लगा के. तो पूछते हैं कौन,
मतलब पहले लुक में समझ नहीं आता। तो आर्ट डिपार्टमेंट ने राख रख दी, बर्तन रख दिए, ये सब कर दिया। मैंने एक्शन बोल दिया, सीन शुरू हो गया, वो बर्तन मांजने लगी और घिसे जा रही हैं बर्तन को, राख ऐसे उठा उठा के, और वो सीन चल रहा है, फिर शुरू हो जाता है। सीन ख़त्म हो गया, हम सब रो रहे हैं। बाद में पता चला कि वो आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही रियलिज्म में असली कोयले रख दिए थे जलते हुए राख के अंदर, और इनका हाथ पूरा जल गया था। वो कोयला को ऐसे पकड़ा, बट कि यार सीन ना कट जाए बीच में, अरे ये कोयला कहाँ से आ गया हाथ में, मतलब हाथ जल गया। उसके बाद जो हम दौड़े हैं बर्नॉल ख़रीदने के लिए, और पूरा हाथ जला हुआ है, सीन हो गया था, बट इन्होंने उफ भी नहीं की थी उसको। वो बात शायद लोगों को मालूम नहीं है। You know, Divya ji, your dedication to the entire industry, we must appreciate and give her a huge, huge round of applause to all the roles you've played. And of course, looking forward to a volume of work coming from you. Thank you for that. Now, which brings me to the next question. You know, we've spoken about feelings, about patriotism. I'd like to now go to Sandeep ji. Sandeep ji, it brings me to a very important question now. How important is the role of script writer, a screenwriter, in invoking patriotism through a film? Because, you know, we've heard from the actor's perspective, हमने director's perspective से अभी सुना है. अगर मैं आपके perspective से जानना चाहूँ, a screenwriter's perspective, we'd like to hear from you on that. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी शेयरिंग द स्टेज विद सच एन इलस्ट्रियस लॉट हियर। ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं बचपन से। एंड सुभाष जी खास करके, जब मैं छोटा था स्कूल से भाग के फिल्में देखा करता था, तो इनकी सारी फिल्में मैंने देखी हुई हैं। कालीचरण और कर्ज और हीरो मुझे जितनी पसंद है उतनी ही पसंद है मुझे क्रोधी और गौतम गोविंदा। तो इन्हीं से सीखा है। जग्गू दादा के साथ भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे लम्हे मैंने गुजारे हैं। जग्गू दादा को पता नहीं होगा, ये मैं एक दिन गोवा में इनसे मुलाकात हुई। कांदुलिम के किसी होटल में रुके हुए थे और मेरे पास एक जीप हुआ करती थी 4x4 महिंद्रा की, और जग्गू दादा अपनी मर्सिडीज़ में आए हुए थे। मैं इनसे मिलता हूँ, बातचीत होती है, हम लोग गुलजार साहब के गाने गाते हैं और बाहर आते हैं, चल बिड़ू घूम के आते हैं। एंड देन जग्गू दा सीज द ये किसकी गाड़ी है, 4x4 वाइट कलर। तो मैं कहा मेरी है दादा। So he tells his driver to follow. He sits in the car and we roam around the entire Anjuna Baga space. You won't remember, I do, because I cherish this memory. And anyway, so now let me come to the question. देखिए, मुझे क्या लगता है कि फिल्म मेकिंग जो है कोलैबोरेटिव मीडियम है। शुरुआत जो है, जो स्रोत जो है वो लिखाई है, वहाँ से होती है। तो जब आप कोई इस तरह का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है। देशभक्ति की बात जब हम करते हैं, वो आपके लिए क्या मायने रखता है। वो आपके लिए वही मायने रखता है जिस लेंस से आप उस सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, और वो जो लेंस है वो आपको अपनी परवरिश से मिलता है। देशभक्ति की जो बात है वो कई तरीके से जाहिर की जाती है। जिंगोइज़म एक तरीका है, मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं बोल रहा हूँ, और एक है बहुत ही संवेदनशीलता से उस जज्बे को समझना। तो मुझे क्या लगता है, देशभक्ति इज़ नॉट सो मच अबाउट डिस्प्ले, बट इट इज़ इन द एक्शन, इट इज़ इन डूइंग। ये कहने की उतनी बात नहीं है जितना करने की है। तो सिपाही जो अपनी जान दे रहा होता है सरहद पे, वो कर रहा होता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो करता है वो देशभक्ति होती है। सिमिलरली सिपाही भी देशभक्त है, और एक किसान जो पूरी ईमानदारी से हल जोत रहा है, और जो संविधान इस देश का है, उस संविधान के को फॉलो करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, और in some way if he's contributing in the growth of the economy of this nation, he's also a देशभक्त for me. तो मुझे क्या लगता है कि राइटर शुरुआत करता है, और उसकी जो संवेदनशीलता है, उसकी जो सेंसिबिलिटीज़ है, वो कागज़ पे आती है पहले, देन द डायरेक्टर कम। जैसे सुभाष जी ने कहा कि वो उसकी राइटर की जो संवेदनशीलता है डायरेक्टर की संवेदनशीलता से कितना इत्तेफाक रखती है। कैन दे स्ट्राइक ए मिडल पाथ समवेयर, डू दे अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ द कोर ऑफ तो जब वो इस तरह की जब एक मिलन होने लगता है,
तो चीज़ें बनने लगती हैं। राइटर की जर्नी एक हद तक होती है, उसके बाद डायरेक्टर के साथ मिलके भी एक लिखाई शुरू होती है। तो उस वो दो सेंसिबिलिटीज़ हैं वो मैच करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से फिल्में बनती हैं, और संवेदनशीलता का ही फ़र्क है कि आप छाती ठोक कर ये कहें कि मैं देशभक्त हूँ, या आप कुछ करके दिखाएं जिससे खुद लोगों को जाहिर हो जाए कि आप देशभक्त हैं। So well put, all in the action. Let's give him a huge, huge round of applause, because hearing it from his role also is so incredibly important. I'd now like to shift and ask a question next up to Shabir ji. You know, what was there in the story of Shersha that drove you to co-produce the film, sir? We'd like to hear from you on that. First, Hanji. good afternoon to everybody and all these dignitaries, Jagu Dada especially. I'm in the industry because of him. So he doesn't know this, but he had introduced me to Rajiv. I don't know. He does things quietly, but he never talks about it. So, see, I've always believed a good movie, can change the world. Whether when you make a good film with its audio and visual implements, the impact it leaves on audiences, which no other source of media can do, And great filmmakers over here have done that in past. I'm a big fan of Rakesh ji. Subhash ji though is a legend and will always remain. I'm surprised he's not making more movies, but he needs to. So when the script of Shersha came to me, actually not the script, the story idea, a friend of mine gave it to me, and I started reading about Vikram Batra. हम अभी युवा की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक अहम बात मुझे बहुत ही दिल को छू गई कि जब हम 22, 23, 24 साल के हुआ करते थे, हम लोग को ज़िंदगी की समझ ही नहीं थी, और क्या करना चाहते थे हम वो भी नहीं पता था। और आज के मोस्ट ऑफ द युवास दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और ये एक लड़का 24 साल में सब कुछ कर गया और अपनी जान भी दे गया, और इतनी सी छोटी ज़िंदगी में उसने सब कुछ हासिल कर लिया, परमवीर चक्र, अपना देश का नाम। तो मैं बोला ये मैसेज हमारे युवा को जाना चाहिए, कि in the small age of 24 you can achieve a lot, you don't have to live 100 years. So और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि मेरे पार्टनर्स करण और ये सब मेरे साथ जुड़ गए और हमने बेहतरीन फिल्म बनाई। और मुझे इंडियन आर्मी ने कहा कि आपकी फ़िल्म से बहुत इम्पैक्ट हुआ है, जो बहुत बहुत गर्व की बात है। इवन द Chief of Army wrote me a personal letter, which I will cherish for my life. And I hope I can do this kind of work in the future also, and inspire the youth and do whatever we can in a small way for the nation. So, ladies and gentlemen, films continue to influence us in ways we don't realize. I'm sure you'll all agree to that. And देशभक्ति की फिल्में खूब बनानी चाहिए और हम सबको देखनी चाहिए. Well, with this, I'd like to thank each and every one of you present here for being a part of this celebration. अब हम इस auditorium को public के लिए खोलेंगे, wherein we've got films like Karma, भाग मिल्खा भाग, और शेरशाह, which you can enjoy. And with this, I just request all our dignitaries to please stand up if you can for a group photograph. And let's create a momentous occasion. And of course, ladies and gentlemen, let's continue the round of applause. Such anecdotes of wisdom. We heard such great pieces of stories which took us back in time, and of course, what they have in future for us. Let's give them a huge, huge round of applause, ladies and gentlemen. Hanji, I know we all want to give them a standing ovation, but just for the press, if you could, thank you. And the best smiles, come on, let's give them a huge, huge round of applause. बहुत ही तालियां बजनी चाहिए. आज़ादी के 75 साल आपको बहुत बहुत मुबारक, ladies and gentlemen. India at 75. Once again, let's say Jai Hind.
Jai Hind! Jai Hind! Thank you so much, ladies and gentlemen. With this, we'd once again like to thank all our dignitaries. You may proceed. Thank you once again to our members of press. Please stick around whilst as our team guides you what is up next. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. दादा हाँ दादा 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 थोडं पुढे ना दादा दादा ए भाई दादा थोडं पुढे आहे ना अरे वो हटी नहीं बाबा चल ना सेल्फी अरे ये सेल्फी अरे भाई रवि उसको साइड कर बैरिकेड खोल ना अंदर जान अरे काड़ा अरे भाई दादा क्या कर रहे थे थैंक यू दादा थैंक यू दादा आज भारत के 135 करोड़ लोग के चेहरों पे मुस्कुराहट है, दिल में खुशी है कि आज के दिन में भारत का हर नागरिक अपने देश प्रेम के लिए उमड़ रहा है। ये मैं देख सकता हूँ टेलीविज़न में भी लोगों को मिलते हुए भी, और ये जेन्युइनली एक आज़ादी का अमृत महोत्सव बन गया है। जब आप अमृत महोत्सव का कहते हैं उसमें पॉजिटिविटी है। उत्सव जो महान है, जो उसको भारत की आज़ादी के 75th ईयर, और हर नागरिक को मैं देख सकता हूँ कि उसके दिल में कोई चर्चा नहीं है, डिबेट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, वो एक देश प्रेम है। हर एक के ज़बान पे गाना है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, आई लव माई इंडिया, एवरीबडी सेइंग दैट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी हियर। आज जो हमें नवाजा है इंडियन म्यूजियम ने, हमारी फिल्म कर्मा दिखाई जा रही है सबको, और आज जो चर्चा हुई कर्मा के बारे में कि इतने सालों के बाद भी ये फिल्म लोगों के दिलों में छाई हुई है, क्योंकि ये फिल्म दिल से लिखी थी, दिल से बनाई थी, पैसे से नहीं बनाई थी, स्टार के साथ नहीं बनाई थी, एक्टर के साथ बनाई थी। इसलिए ये फिल्म सच्ची थी, है और रहेगी। इस बात की खुशी है मुझे। सर जी, जब मैं जैसे आपने कहा और हम सब मानते हैं, अब हो सकता है आपके मिलने जुलने वाले भी हों, आप देखेंगे आज की तारीख में या 15 अगस्त के वक्त मेरा धर्मा तू मेरा लोगों के स्टेटस लगे होते हैं। जी हाँ। डू यू गेट इमोशनल, डू यू गेट नॉस्टैल्जिक यार, इतना प्यार, इतना इतने वक्त के बाद भी? कोई भी फिल्मकार के लिए एक बच्चे की तरह होती है, और जब बच्चे पे आपका देश गर्वित हो, सबसे तो ज़्यादा उसकी मदर को और फादर को होती है खुशी। तो मैं उस फिल्म की माँ भी और पिता भी था, और जब उसकी तारीफ होती है तो मुझे लगता है कि मैंने जीवन में थोड़े अंश में छोटा सा एक अच्छा काम किया है ऐसे। तो आई फील एज गुड एज फादर फील्स फॉर द सक्सेस ऑफ हिज सन। बच्चे के साथ उसकी शान बढ़ती है, अच्छा लगता है।
आखिरी मेरे प्राइम तरफ से मिनिस्टर ने जिस तरह की मुहिम हर घर तिरंगा, जिस तरह हम आते जब जितने भी दिन है लास्ट 2 डेज से हर जगह तिरंगा, सर कितना इमोशनल फील करते, कितना कनेक्ट फील करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशबू फैली है देश प्रेम की इस तिरंगा की वजह से कि हम लोगों ने भी अपने विजलिंग वुड्स में एक तिरंगा का गीत बनाया। तो आप सुनिए, यूट्यूब में है, हर घर में तिरंगा। कि आज हर संस्था, हर इंस्टीट्यूशन, हर बंदा या तो तिरंगा झंडा लिए खड़ा है या उसका गीत लिख रहा है या उसका गाना बना रहा है। इससे बड़ा महोत्सव तो मैंने नहीं देखा कि जब पूरा नेशन एक साथ जुड़ गया हो। आखिरी सवाल सुभाष जी, आज हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक मुहिम चलाई है, लेकिन जब मैं कर्मा की बात करता हूँ, मैं परदेश की बात करता हूँ, देशभक्ति से जो मोहब्बत आपकी फिल्मों के माध्यम से मिली और आज एक पर्व बनाया जा रहा है, अब उसको जैसे सेलिब्रेट करा गया, आपने तो बहुत पहले वो सब सिनेमा के माध्यम से करना। क्योंकि मैं जब बचपन में फिल्में देखता था तो जितनी भी पेट्रियोटिक फिल्म थी या गीत थे वो मुझे प्रेरित करते थे। तो पेट्रियोटिज्म जो था हमारे नेचर स्वभाव में था, हमारे घरों में भी, हमारे माँ बाप में, हमारे सब रिश्तेदारों में भी एक पेट्रियोटिज्म था। और उस पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो होती है आप में एक स्वभाव बनता है, हृदय में आती है। तो जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हों या लॉयर हों या फिल्म मेकर हों, तो हमारे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस तरह की कहानी लिखें, उस तरह की फिल्म बनाएं, उस तरह का गीत बनाएं। तो आई एम लकी, भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक फिल्म मेकर बना और फिल्म के द्वारा मैं अपने दिल से जो महसूस करता हूँ अपने देश प्रेम की बातें, वो मैं फिल्म में लिख सकूँ। थैंक यू सो मच सर एंड हैप्पी हमारे साथ give me a second, sorry. Okay ma'am, firstly today we are celebrating 75th Independence Day. It's a great day for our India and we are so proud of this day. Tell us how do you feel for this day? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है एंड बहुत ही गर्व की फीलिंग महसूस होती है, हमेशा होती है। लेकिन जब सब एक साथ मिलकर इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और सबके पास वो तिरंगा है, एक बड़ा खूबसूरत मुहिम है ये हर घर तिरंगा। क्योंकि आप जिस गली से निकल रहे हैं, जिस घर को देख रहे हैं, वहाँ आप तिरंगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बड़ी what do you say when you just feel it reiterates, आपको बार बार ये महसूस होता है कि it's I'm very proud to be an Indian. एंड जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हर घर तिरंगा का मुहिम चलाया और जिस तरह 2 दिन से मैं देख रहा हूँ हर घरों में तिरंगा है, Yes. सीलिंग में जा रहे, जहाँ भी जा रहे, लाइटिंग है, कितनी क्या फीलिंग होती है इस चीज़ को देख के। और प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत ये एक सेलिब्रेशन किया है हमारा। और मुझे लगता है उन्होंने 14 अगस्त को भी जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इनिशिएटिव लिया है वो भी बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि हम सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितने लोगों ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। सो उसे याद करते हुए, उन लोगों को याद करते हुए जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, एक अपने आप में बड़ा सुंदर मुहिम है। और फिर हर घर तिरंगा, जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी को और उसे महसूस कर रहे हैं। हम कई बार सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उसे महसूस करना, ये सही मायने में आई थिंक सब महसूस कर रहे हैं। और आज की मैं बात करूँ, आज आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जो सिनेमा घर के हिस्टोरिक जगह है, उसमें आके फ्लैग होस्टिंग करना कितनी प्राउड की बात थी आपके लिए? मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूज प्राइड दैट यू आर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग, और आप अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आप खड़े होते हैं ना तिरंगे के सामने, ये सल्यूट करते हैं, वो फीलिंग अलग है। और वो करने का मौका मिला सबके साथ यहाँ पर एक साथ, उसे बयां करना शायद मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि बहुत खुश हूँ। कई मूवी में हमने आपको देखा है, हिस्टोरिक मूवी भाग मिल्खा भाग की मैं बात करूँ, एक ऐसी मूवी थी जो आज भी कई हद तक जब मूवी आती है लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। आपको किरदार के वो काफ़ी पसंद करते हैं एज ए सिस्टर। आप कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें आने वाले समय में आप काम करना चाहोगे, हिस्टोरिक मूवी जो?
कितनी सारी है, हमारी हिस्ट्री तो इतनी बड़ी है। पार्टीशन पे ही कितनी कहानियाँ हैं, आज़ादी की कितनी कहानियाँ हैं। ऐसे तो आप एक एक पन्ना उठाएंगे, आपको बहुत सारे सुनहरे पन्ने मिलेंगे। सो ऐसा अभी जहन में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रूर करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस। टू यू एज वेल, थैंक यू।